मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। So all of you should have some habit. You should develop a habit of reading. आप लोग हर टाइम मोबाइल में लगे रहते होंगे, क्यों भाई? सर टिकटॉक उन पे देख मूवी लो, भी बनी है ना। टू रिफ्लेक्ट। So new topic, next topic I am taking. So we were seeing different prospects of directional derivative. Using directional derivative, what the things we can find? So we can find direction derivative. We can find using gradient. We can find direction derivative. Then we can find the equation of tangent line, equation of tangent plane using gradient. Then next concept is estimating the change in f. Estimating the change in f. Estimating the change in f in a direction of u. In a direction u. If your functions representing some fxy, z is equal to fxy, and you are moving in some direction, then what is the change? You are representing some fxy and your function is moving in some direction, then how to find a change? So in function of one variable, you know, in function of one variable, we can find change by the formula df is equal to f dash p naught ds. ds is what? If we are saying, suppose if we move a small distance ds, small distance, अगर आपको distance दे रखा हो in terms, we have move a small distance ds in some direction. Function of one variable में तो आपके पास direction या तो left right में जाएंगे आप, so you are moving in this direction, then the change is given by this df is equal to f dash p naught ds. F dash p naught means the derivative of the function at the point p naught, and when f is a function of one variable. So this concept I can generalize for function of two variables and more than two variables. So what will be the formula? Suppose if your function for a function of two variables, function of two variables, we have, इसी फॉर्मूले को मैं जनरलाइज कर दूंगा, तो व्हाट विल बी द चेंज? df is equal to, now this f dash p naught will become डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना, del f p naught, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है? दिस इज योर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यू नो, del f dot u, है ना, into ds. So it will give you the change in the value of a function f when you are moving a small distance. This is your distance increment. सर सर डीएस जो है सर उसके डॉट प्रोडक्ट में या फिर खाली मल्टीप्लाई में? मल्टी, ये आपका स्केलर आएगा ना, व्हाट इज दिस क्वांटिटी? स्केलर। सर स्केलर। तो ये मल्टीप्लाई देगा। अच्छा, ये अंदर वाला डॉट में सर? ये डॉट है क्योंकि दीज टू आर वेक्टर्स। ओके सर, थैंक यू। So this is a distance increment. Mean this is that this formula you can apply when it is given to you some distance. Because z is equal to some fxy is given to you, and you move some small distance ds. Then what is the change in the value of f? Then you can apply this formula. It will give you change in the value of f. Because it's a function of two variables, I am taking direction derivative. क्योंकि you know, if you are function of two variable, you can move in any direction. किसी भी direction में move कर सकते हैं. Just let us take one problem. Example 4 is given to you. Page 794. Estimate how much the value of fxyz. यहाँ function of three variables देखिए. Y of sin x plus 2yz.
the value of. Now this is a function and it can represent any physical quantity, है ना? It may be represent your temperature of body, anything it can represent. तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें इस फंक्शन से क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना? There are different parameters. You can frame a problem into a functions. जब ऑपरेशन पढ़ते हैं, ऑपरेशन में ही दिखाया जाता है, उसमें चैप्टर होता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो वहां पे आपके पास प्रॉब्लम गिवन होती है, उसको हम क्या करते हैं, पहले मॉडलिंग करके फंक्शन में लिखते हैं इस तरीके से। दिस फंक्शन में रिप्रेजेंट टेम्परेचर, इट में रिप्रेजेंट कॉस्ट, इट में रिप्रेजेंट लेबर, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है ना? वो डिपेंड करेगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉडलिंग। कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी किसी ने, कंपनी ने, फैक्ट्री ने, उस प्रॉब्लम को आप पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग से लिखेंगे इस फॉर्म में। इट इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको गिवन है ऑलरेडी कि एक फंक्शन है f(x,y,z). तो प्रॉब्लम इज एस्टिमेट हाउ मच द वैल्यू ऑफ दिस विल चेंज if the point suppose p x y z moves 0.1 unit from p naught 0 1 0 straight toward p1 2 2 minus 2. Okay, so what is given? सर ये वैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना? हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको z को तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, लेकिन ये एक्सप्लिसिट है क्योंकि ये w है ना, इसको मैं w कह सकता हूँ, फोर्थ वेरिएबल। तो w इज रिटन एज अ फंक्शन ऑफ x y z, so it is explicit in w, है ना? w यहाँ नहीं है कहीं। I have w on the left hand side and 3 variables on the right hand side, so it is explicit in w. Okay. यस सर। So here you have to find that if you are moving a small distance ds given है ना, तो प्रॉब्लम देख के you will get the idea कि what the formula I will be applying. तो जब इस distance is given to you in this form, इसका मतलब क्या है कि small distance ये आपको ds given है, कि हमने ds मूव किया और हम यहाँ 0 1 0 एक पॉइंट पे थे एंड यू मूव टुवर्ड दिस, यू आर स्टैंडिंग एट सम पॉइंट p नॉट, एक पॉइंट है 0 1 0, इट विल बी अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, यू नो। यहाँ से मूव करके यू मूव समवेयर हेयर p1 2 2 minus 2। तो ये आपका फंक्शन था, इसका यू कैन प्लॉट द ग्राफ। अगर आप ग्राफ दें तो फंक्शन चल रहा होगा। तो व्हेन यू मूव हेयर हाउ मच द वैल्यू ऑफ f विल चेंज, दिस इज द पॉइंट। So you know, for this I have just introduced the formula. This is the formula. I need directional derivative. For directional derivative, I need gradient and u. U is the direction. So gradient you can find easily because f(x, y, z) given to you. The point is u. How to find u? But of what is u here? सर P1 सही होगा सर 2i कैप सर वेक्टर के फॉर्म में निकालेंगे सर। Yes. 2i 2i कैप प्लस j कैप प्लस j कैप j कैप माइनस माइनस 2k कैप 2k कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस। कैसे मतलब क्या निकाला? सर डायरेक्शन सर रेशियो निकाला है हम लोग। मतलब तो आपको कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके सर। हाँ, that is called position vector माइनस करके ना, यस सर। वेक्टर। फर्स्टली यू हैव टू राइट p नॉट p1 वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ p1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p नॉट, है ना? दिस इज द फॉर्मूला। ये आपको मालूम है, जैसे नहीं मालूम उसको मैंने रिकॉल कर दिया। तो यू कैन फाइंड, इफ यू नो इनिशियल पॉइंट, यू नो फाइनल पॉइंट, यू कैन फाइंड द वेक्टर बाय दिस फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर। तो 2 minus 0 i प्लस 2 minus 1 j प्लस माइनस 2 minus 0 k, इससे यू कैन फाइंड द वेक्टर। यहाँ डायरेक्शन नहीं गिवन थी आपको, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता था, तो इट विल गिव यू द डायरेक्शन। सो यू गॉट ti प्लस j एंड माइनस 2k, है ना? एंड फॉर डायरेक्शन यू नो यू विल हैव टू डिवाइड बाय इट्स मॉड्यूलस। तो डायरेक्शन को हम u से डिनोट करते हैं बेसिकली। तो u विल बी p नॉट p1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ p नॉट p1, इट विल गिव यू द डायरेक्शन। तो मॉड कितना है इसका? 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 आएगा सर। 3 आ गया ना, √9। So you got
2/3i plus 1/3j minus 2/3j. वन थिंग यू गॉट, है ना, हमें u मिल गया. अब चाहिए डेल एफ. डेल एफ निकालना आसान है, f आपके पास है ऑलरेडी. टेल मी व्हाट इज डेल एफ. पहले डेल एफ बताइए. डेल एफ इज व्हाट? fxi fyj, है ना, इट्स अ ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी. So how much fx? Sir, y cos x. Y cos x I plus fy 2z. So sin x sin x sin plus x 2z Sin plus x 2z. z. good. J and what about fz? 2. So 2y. 2y Sir, sir. 2y. ये 2y तो के आपका in particular है. I will find at a point. So del f at a point. Point, what is point? P naught is the point, है ना? This is the point. This point 0 1 0. yes. So del f 0 1 0. x की प्लेस पे 0 पुट किया आपने, तो cos 0 और y की प्लेस पे 1. So how much it is become? I. I cap. I cap. I cap. Plus x is 0, so sin 0 is 0, z is 0 0. So this vector is 0. Sir, Y is 1, so 2k. I plus 2k. Okay. So I can find directional derivative. So your duf at the point p naught, that means del f p naught dot u. So just take the dot product of these two vectors, u का और इसका. तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखिए 2/3i, j है नहीं और k है. So you got only 2/3i. I dot i is 1, है ना, तो स्केलर आएगा 2/3 and minus, because 1/3 dot 0 minus 2/3 dot 2 minus 4/3. So you got minus 2/3. So increment, so the change df is given by df is equal to, फॉर्मूला आपका ये फॉर्मूला था, del f p naught dot u and इसका डॉट प्रोडक्ट मीन स्केलर प्रोडक्ट विद दैट. It is minus 2/3. ds is given to you small increment 0.1 unit. So you got 0.1 unit. तो इसको और आप चेंज सॉल्व कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली माइनस 0.067 पॉइंट्स में निकाल के दे रखा है आंसर. इसे सॉल्व कर लीजिए तो अप्रोक्सीमेटली इट इज कमिंग इतना यूनिट. तो इतना चेंज उसकी वैल्यू में आ जाएगा, यानी ये वैल्यू विल बी डिक्रीजिंग, है ना. इफ योर fxyz is given to you, it will be decreased by some this. चलो, next concept we have how to linearize function of two variables. एक मिनट, कॉल आ रही है, जस्ट अ मिनट. कट हो गई, बाद में बात कर. नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव हाउ टू linearize a function of two variables. We can linearize function also. Sometimes if you want to find the approximate value of a function and it is not easy to calculate, so what we do, we take a linear approximation of the function. Suppose for example I am taking, firstly I am recalling for function of one variable. You know, suppose y is equal to fx given to you and it is the graph of the function. Suppose this is your y is equal to fx and at some point you have a tangent line. It is some point given to you and suppose this point I am taking some coordinate a comma f. ये point आपका x equal to a. This is your x axis, this is your y axis. So you know what is the equation of tangent? Equation of tangent, what I can write? so y minus y dash. हाँ, So y minus f is equals to f dash a f dash a f dash a sir, x minus a. है ना. f dash a स्लोप होता है आपका.
ओके, और ये आपकी जो है दिस इज योर टेंजेंट लाइन है ना। इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूंगा, सपोज y इज इक्वल टू कुछ lx लिख देता हूँ, है, इट इज योर टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट की इक्वेशन तो कोई लीनियर होगी ना, जैसे ये निकलेगी, ये lx है सपोज, तो दिस इंप्लाइज दैट आई कैन राइट y इज इक्वल टू एफ ए। अगर हम इधर ले जाए तो यू कैन राइट एफ एफ ए, डैश ए एफ ए पहले प्लस लिख दो, प्लस एफ एफ डैश ए डैश ए एक्स माइनस ए। माइनस सी। और y को अगर मैं lx कह रहा हूँ, क्योंकि ये लीनियर x में लीनियर है, देखिए ये 1 डिग्री है, तो आई कैन राइट इट्स अ फंक्शन ऑफ x, lx इज इक्वल टू एफ ए एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस। एक्स माइनस ए। अब यू नो कि एज लॉन्ग एज द लाइन रिमेन्स क्लोज टू द कर्व, ये लाइन कर्व के जितने क्लोज जा रही है, देखो इट इज बिहेविंग लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स। देखो यहाँ इस पॉइंट पे तो आपका एफ एक्स एल एक्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम। तो हाउ मच आई विल क्लोज टू दिस पॉइंट, व्हाट विल बी हैपनिंग, दिस एफ एक्स विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल एक्स। मतलब क्या हुआ, एल एक्स इज टेंडिंग टू आवर्स एफ एक्स, कह सकते हैं नहीं, as long Yes, sir. as the line this lx remain close to fx, close to remains close to fx, lx will give you a good approximation, lx gives a good approximation of fx, है ना। देखिए, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट इज lx and fx सेम, बट आई एम सेइंग कि when you are very near to this point, lx can behave as fx. So it is called tangent line approximation. It is called tangent line approximation, है ना, tangent line approximation। क्योंकि जो fx है आपका, दिस fx may be any complicated function। तो कभी कभी आपको अगर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, तो हम क्या करेंगे, अगर उसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि लीनियर के बारे में वी नो एवरीथिंग, लीनियर को रीड करना आसान है, लीनियर के बारे में यू कैन गेट सो मेनी calculation, you can find the slope of the linear easily. So if you want to find sometimes you want to see how this fx will behave, so sometimes what we do, we take the linear approximation। approximation से एक आइडिया लग जाता है कि ये इसके अप्रोक्सीमेट है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हो रही होंगी, होता है नहीं होता है। so we can say that fx will be, I am not writing equal, just I am saying equivalent to, similar to lx। okay, बताइए। so we can say this, is this clear? Yes, sir. है ना, it is called Yes, sir. it Yes, is sir. called linear। now I will extend this concept for function of two variable। तो टू वेरिएबल में क्या होगा भाई, लाइन की जगह क्या आ जाएगा, सर प्लेन। प्लेन हो इसी जाएगा। कंसेप्ट को, बिल्कुल इसी कंसेप्ट को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, सपोज सब फंक्शन इज गिवन टू यू, ऐसे कोई मूव कर रहा है फंक्शन, यस सर किसी भी पॉइंट पे लीनियर इक्वेशन इक्वल होंगे सर। नहीं, किसी भी पॉइंट जहां पे हम जो पॉइंट ले रहे हैं ना, योर फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, where you can plot the line, है ना, it must be differentiable, तभी तो हम इसकी बात करेंगे f dash a की। जी सर। if it is differentiable function, if you can find this equation of tangent line, so at that point I can say that it will be behaving like this। okay, सर so same thing I am taking, suppose you have some z is equal to fxy and you want to see here how it will be behaving, so what I will take tangent plane like this, it is sitting on this z is equal to fxy, it is sitting here at some point, some p naught। so here I can say कि ये plane जितना near होगा इसके ना, it will be behaving like some approximating like this surface।
तो इस कंसेप्ट को हम एक्सटेंड करेंगे अगर, तो व्हाट आई विल डू कि सपोज दैट द फंक्शन z is equal to fxy near at a point, let z is equal to fxy near a point, suppose x naught y naught, है ना, at which we know f, fx and fy. इस पॉइंट पे हमें fx f, जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर पॉइंट था तो वी शुड नो व्हाट इज f dash a, तभी हम यूज कर सकते थे, वरना आई कैन नॉट राइट लाइक दिस, है ना, एज आई टोल्ड यू इट मस्ट बी डिफाइंड देयर. सेम थिंग हियर कि एट अ पॉइंट x naught y naught at which योर पार्शियल, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, पार्शियल डेरिवेटिव fx fy, है ना, आर नोन. known means they are defined there. So what I want to find कि suppose you have a point x naught y naught, इसको अगर हम प्लॉट करें, एक प्लेन में सपोज प्लॉट कर रहा हूं मैं, तो here you have a point x naught y naught, and suppose you move a small distance xy here, means a small increment del x, small increment del y. This is an increment in x, it is an increment in y. तो ये जो आपके पास न्यू पॉइंट है, सपोज इट इज एक्स वाई, del x is how much, x minus x naught, del y is y minus y naught. So what happening that we move from x naught y naught to a nearby point xy. So by the इस इंक्रीमेंट थ्योरम से मैं प्लेन की क्वेश्चन लेके आऊंगा. तो यू नो बाय द इंक्रीमेंट थ्योरम, हमने इंक्रीमेंट थ्योरम पढ़ी थी व्हेन आई वाज डिफाइनिंग डिफरेंशिएबिलिटी फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, है ना. आई टोल्ड यू differentiability for function of two variable I cannot define using the definition of function of one variable, and I cannot find dy by dx here for z, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास y is equal to fx था. So to defining this differentiability I use a characterization property of function of one variable, that is called increment theorem. तो मैंने आपको बताया था कि अगर differentiable होगा तो what should happen, your del z is equal to fxy minus fx naught y naught. This should equal to how much, fx x naught y naught del x plus fy x naught y naught del y plus epsilon 1, है ना. I use this characterization property which is called your increment theorem to define the differentiability, and I told you when where epsilon 1 and epsilon 2 they are tending to 0 as del x del y tending to 0. If this thing is defining and you are getting some defined thing, है ना, then we say that function is differentiable. इस dz को हम क्या, del z को dz कह देते हैं, है ना. It is the definition of total differentiability for a function of two variable, है ना. So we use this इंक्रीमेंट थ्योरम फॉर डिफाइनिंग द डिफरेंशिएबिलिटी. याद है नहीं? यस सर. हाँ, तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, देखो अब ये इसी क्वेश्चन को अगर अब ये वही है, देखो यहाँ पे व्हाट इज दिस हियर सेम कि y माइनस एफ इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर y था, y मींस fx, y इज इक्वल टू व्हाट, fx. तो यू राइट fx इज इक्वल टू समथिंग. सेम थिंग हियर, ये है आपके पास z. अब तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, z इज इक्वल टू fxy इज इक्वल टू टेक दिस thing on the right hand side. So what I can write, or I can write fxy is equal to, इसको हम राइट में ले जाते हैं जैसे उधर ले गए थे, तो what will happen, fx naught y naught plus fx x naught y naught x minus x naught plus fy x naught y naught y minus y naught and plus epsilon 1 del x plus epsilon 2 del y. ठीक. अब because I am taking that del x del y they are very small quantity. Del x क्या है, it is the small increment in x, del y is small increment in y. So if I will take epsilon 1 epsilon 2 tending to 0, तो जो प्रोडक्ट होगा जब del x छोटा है तो ये और फास्ट होगा टेंडिंग टू 0, है ना. इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, so the product is again very small quantity.
So this I can write approximately this fxy will be approximately equivalent to fx naught y naught plus fx x naught y naught x minus x naught plus fy x naught y naught y minus y naught. अप्रोक्सीमेटली इसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं, बिकॉज these are very small quantities, product of two small quantities again a smaller quantity, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा, नॉट इक्वल. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. ये क्या है देखो, x माइनस एक्स नॉट, जब से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये प्लेन की इक्वेशन आएगी. सो व्हाट विल बी एक्चुअली, दिस विल बी अ टेंजेंट प्लेन. इज इट क्लियर? यस सर. ये क्या है? इट इज अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन. सो द लीनियर, तो हमने क्या करा, फंक्शन, और ये क्या है, ये आपके लीनियर है, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है. So you got that the function can be represented approximately as a function of two variables of single degree. That means linear function. So you can say the linearization, इसे हम linearization भी कहते हैं, RIZATA, कि हम फंक्शन को लीनियर फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करा रहे हैं. The linearization of a function fxy at a point x naught y naught when f is differentiable. कंडीशन क्या है कि f डिफरेंशिएबल हो. is the function what lxy is equal to, क्योंकि इसको मैं fxy को अब lxy लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ लिखा था fx को lx के अप्रोक्सीमेट कर दिया था, है ना. तो हमने क्या लिख दिया था, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू lx. यहाँ पर तो एप्सिलॉन का कंसेप्ट ही नहीं था, वन वेरिएबल था, लेकिन यहाँ टू में वेरिएबल में होता है. लेकिन जब पॉइंट वेरी नियर है, आई कैन टेक इट्स टेंडिंग टू 0. तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू fx नॉट y नॉट प्लस fx x नॉट y नॉट x माइनस x नॉट प्लस fy x नॉट y नॉट y माइनस y नॉट. सो दिस इज कॉल्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन, और क्या कहते हैं इसे, टेंजेंट प्लेन अप्रोक्सीमेशन, है ना. अब इक्वेशन नहीं है, मैंने इक्वल टू 0 नहीं लिखा है. इक्वेशन मतलब यू आर राइटिंग 0. तो आई एम जस्ट अप्रोक्सीमेटिंग lxy टू दिस टेंजेंट प्लेन इक्वेशन, टेंजेंट प्लेन अप्रोक्सीमेशन. दिस थिंग इज क्लियर? बताइए. तो हमने क्या करा एक्चुअली, हमने इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाली है, ये जो lxy था, ये था आपका lxy. तो व्हाट वी डू हियर, कि हियर एट सम पॉइंट x नॉट y नॉट पे आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन विच इज अप्रोक्सीमेटिंग दिस सरफेस. उसने वही कंसेप्ट है कि एज लॉन्ग एज इट इज क्लोजर टू द सरफेस, उतने अप्रोक्सीमेट बेटर देगा ये ना. यहाँ कुछ एरर भी आएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आई एम वेदर इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट आई एम रिमूविंग दिस क्वांटिटी, तो it is, that's why I am saying it is approximate. There will be some error also, है ना, जब आप काउंट करेंगे. एग्जैक्ट इक्वल नहीं है ये. सर ये अप्रोक्सीमेशन तभी वैलिड होगी ना सर, जब x और x नॉट का डिफरेंस बहुत कम होगा. हाँ, तो हम वही तो कह रहे हैं कि वी आर मूविंग अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल इंक्रीमेंट, यस. है ना. तभी ये मतलब आप लिखेंगे, अगर ज्यादा डिफरेंस हुआ जब आप लिखेंगे, तो इट विल नॉट गिव यू द गुड अप्रोक्सीमेशन. उस केस में ये आपके पास वैल्यू जो आएगी, गुड अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगा. दैट विल बी अ बैड अप्रोक्सीमेशन. जब आप किसी चीज को अप्रोक्सीमेट कराते हैं, यू ऑलवेज नीड अ गुड अप्रोक्सीमेशन, कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्लोज हमें वैल्यू मिल जाए. ये तो होता है. यस सर. हाँ, इफ यू वांट टू गेट समथिंग, अगर आपको नहीं मिलती तो आप कहते हैं कि चलो अच्छा ये नहीं, कम से कम इतना आ जाए. वही चीज है. जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, वन एग्जांपल आई एम टेकिंग. फाइंड द linearization of
fxy is equal to x square minus xy plus half y square plus 3 at 2, 3। ठीक है, देखो ये फंक्शन है, इसका आपको लिनियराइजेशन निकालना है। तो मैंने सिंपली फंक्शन है, ये कॉम्प्लिकेट हो सकता था यहाँ पर एक्स क्यूब लगा देते और यहाँ साइन एक्स वाई प्लस लॉग कुछ भी लगा सकते थे। इट मे बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। अब अगर आपसे पूछे कि भाई इस फंक्शन के बारे में बताओ कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फंक्शन, कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पर टर्न करेगा, तो हम एकदम से नहीं बता सकते। तो व्हाट आई विल सी कि इस 2, 3 के पास मैं देखूंगा कि ये लीनियर हाउ मच इट विल बी सेम एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। इसका लिनियराइजेशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आई वांट टू फाइंड लिनियराइजेशन, तो उसके लिए व्हाट आई नीड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना। आई नीड 3 थिंग्स, एफ एक्स नॉट वाई नॉट, एफ एक्स एक्स नॉट वाई नॉट, एफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट। तो एफ एक्स नॉट वाई नॉट मीन्स एफ 3, 2। ये तो हम निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे। इट विल बी कमिंग सर पॉइंट 2,3 है, 3,2 नहीं है। नहीं 3, 2 ही है, वो वहां गलत था। हाँ 3, 2 यहाँ 3, 2 कर ली। ठीक है, सो एफ 3, 2 यू विल बी फाइंडिंग इट इज कमिंग 8। ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं बिकॉज टाइम इज नॉट मच। देन यू विल फाइंड fx at the point 3, 2। fx you can find easily 2x minus y, है ना, at the point 3, 2। how much it is coming? 2 3 6 minus 2 4। fy 3, 2 I am direct writing it is -1। so lxy इसकी वैल्यू क्या थी, fx नॉट y नॉट that means 8 plus fx x नॉट y नॉट 4 और क्या था साथ में x minus x नॉट that means x minus 3 plus fy x नॉट y नॉट -1 y minus y नॉट 2। कितना आया सॉल्व होके बताओ, 4x minus y minus 2। ओके, नाउ दिस इज सिंपल फंक्शन, इट्स अ लीनियर, इसे आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। इट्स अ प्लेन, क्यों भाई, इसको आप प्लॉट कर सकते हैं इजीली। यू कैन सी व्हाट इज द स्लोप, सो मेनी थिंग्स यू कैन गेट इजीली। तो एट द पॉइंट 3, 2 इट विल बी गिव यू द अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस। तो ये जो फंक्शन है आपका, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस एट द पॉइंट 3, 2। इसकी स्टडी इजी है कंपेरेटिवली। इज इट क्लियर? Yes. हाँ Yes, sir. लेकिन यहाँ पे एरर भी आती है अगर आप इस तरीके से पॉइंट कर रहे हैं, तो देयर विल बी सम एरर आल्सो। that error part is not in your syllabus, so I am not taking that thing, but इसी में आगे इन्होंने दे रखा है कि you can find error। तो जो एरर का फॉर्मूला है वो उसमें mod of exy जो एरर आती है ना, it will be less than equal to half m mod of x minus x naught and plus y minus mod y minus y naught इसका स्क्वायर। ये इसके एरर जो है हम निकालेंगे कि एरर शुड बी नॉट मोर देन दिस, एरर निकाल सकते हैं ना। ये कंसेप्ट इसी में आगे दे रखा है, यू कैन स्टडी फ्रॉम द बुक इफ यू आर इंटरेस्टेड कि हाउ टू बाउंड द एरर आल्सो। बट इन योर सिलेबस यू हैव ओनली लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फंक्शन, सो इट विल गिव यू द अप्रोक्सीमेशन। ठीक है भाई, अगर 3 वेरिएबल जी व्हाट क्या कह रहे हैं? अगर 3 वेरिएबल तो सर इसमें 2 वेरिएबल थे x और y। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हो x y z, हाँ तो तो यही उसका लिनियराइजेशन कैसे निकालेंगे? यही कंसेप्ट, यही तभी तो हमने डेफिनेशन डिफाइन करी थी ये वाली। इसी को एक्सटेंड कर देंगे आप फिर, एफ एक्स एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट प्लस एफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट प्लस एफ साइला वन डेल एक्स, एफ साइला 2 डेल वाई, एफ साइला 3 डेल जेड, है ना। जी सर जी। यही कंसेप्ट एक्सटेंड होता चला जाएगा आगे, बस इसी को यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बस एफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट एफ एक्स एफ वाई और साथ में आ जाएगा एफ जेड एक्स नॉट वाई नॉट जेड माइनस जेड नॉट।
Next concept we have differentials. You can find differentials also using this. Differential is what? If you have the value of a function and we move from point x naught y naught, उसमें ds move ना करके suppose x naught plus dx and y naught plus dy move कर रहे हैं, then what is the change in the function? That is called differential. ठीक है, that concept I will take tomorrow because time is not sufficient. ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। कल करेंगे इसको। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। I will upload this video. थैंक यू सर। थैंक यू सर।